So, hello, dear friends. I'm Dr. Sona Kaushal here. I'm a neuropsychologist, and today I'm speaking to you from Dehradun. And today I have the honor and the privilege to invite a very dear friend of mine, Preeti Sachdeva. She reminded me that it was Teachers' Day today. So I started my first podcast, my maiden podcast with Preeti today. And we'll be talking about something about teachers, their emotional wellness, and how their emotional wellness and their behavior and attitude has a direct effect on the children, on their students. So, hello, Preeti. Welcome to our show. This show is Share and Care podcast with Dr. Sona Kaushal, and you're my first guest on the show today. Welcome. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Firstly, wish you and everyone a very happy Teachers' Day. And it has given me seriously a great honor to be on the show with you. Your first podcast show is going to launch, and my wishes, my best wishes, my love to this podcast and to you. So thank you so much for inviting me. Thank you, Preeti. Welcome. So, Preeti, today when I take up this podcast, it's more, getting to know about what you do, what the teachers feel. So it's for the teachers community. We'll be sharing our views and helping all the other teachers out there who are, so busy bringing up the generation next, the future of our country. Right, Preeti? Right. So, what I feel, Preeti, is that uh, parents at home, we always, dear friends, first I would like to introduce Preeti to you before I proceed. Right. She's a lovely, she does lovely podcasts, Parenting with Preeti. She's a teacher since 13 years. And she is a wonderful person and a wonderful teacher. And you can see her smiling face and you can realize how sweet and humble she is. Would you like to add anything to that, Preeti? No, ma'am, you have said almost everything. But just a small thing, I am also an NLP coach, which has a great means given me insights how to Yeah, manage the mental stress or how to manage your correct. mental state. I'll talk about that also in the talk show. So thank you so Wonderful, much for wonderful. this introduction. Thank you. So, Preeti, what I want to tell, what I tell parents and teachers and students whenever I go for workshops, I always tell the parents that look, your parents at home. Your parents at home behave like parents and stop behaving like teachers at home. And even if your teachers at school, but you become a parent when you come home, and it's a different thing being a parent and being a teacher. So, I said, I tell them change your tone, change your attitude, be a parent. Then, when I talk to the teachers, I tell them that you are teachers and parents at school. I mean, so just see the difference. See the double responsibility teachers have. They are parents and teachers for the children in school. Do you think I'm correct in saying this? Absolutely, ma'am, absolutely. Because parents are the first teachers of their children. जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके जब तक कि वो स्कूल में नहीं जाता तब तक पेरेंट्स की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर ही होती है। वो एक तरीका देखा जाए तो वो भी एज अ टीचर ही वो करते हैं, बट दे नीड टू कनेक्ट विद देयर चाइल्ड इन इमोशनल सेंस, इन साइकोलॉजिकल सेंस, एवरी मीन्स। एंड वंस द चाइल्ड हैज गॉन टू द स्कूल या पेरेंट भी एज अ टीचर स्कूल में कर रहे हैं तो वहाँ उनका और डबल रोल हो जाता है कि आपको मतलब बच्चों को अपने बच्चे को भी देखना है घर पे, प्लस आपको स्कूल में भी जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो करनी है। हाँ, ये वेरी करेक्ट। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो पेरेंट है वो टीचर तो है घर पे, फर्स्ट टीचर होता है, इट्स सेट। बट आई टेल देम कि बिहेव मत करो, डोंट बी सो स्ट्रिक्ट, डोंट बी, बिकॉज चाइल्ड जब स्कूल से घर आता है तो ही वांट्स अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर, ही वांट्स पेरेंट्स। लेकिन मैं कह रही हूँ टीचर्स जो स्कूल में है वो टीचर्स तो हैं ही, लेकिन उन बच्चों की वो पेरेंट्स भी हैं स्कूल में, और अपने बच्चों की तो है ही है, तो डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So you people carry a lot of burden on your shoulders. Hats off to all the teachers out there. I also feel, Preeti, teachers के जो words होते हैं, जो behavior होते हैं बच्चों के लिए, they leave very big, great footmarks on the psyche of a child. वो जिंदगी भर याद रखता है कि मेरी टीचर ने ये बोला था, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था. So we need to, we need to sharpen, hone our skills and become better teachers, because we have a very big effect on the psyche of teachers.
Yeah, you agree with me, or would you like to add anything to that? एब्सोल्युटली मैम, आई कैन रेजोनेट दिस थिंग वेरी वेल कि जब मैंने आई वाज स्टडिंग इन अ स्कूल, जैसे टीचर्स की एम्पैथी और वो अफेक्शन, जो कनेक्टिविटी रहती थी, वो मुझे इतना इंस्पायर करती थी कि मुझे ऐसा, मतलब उनको देख के लगता था बड़े होके मुझे भी टीचर ही बनना है। तो दैट वाज सो Wonderful. मच पावरफुल, मतलब उनके कभी वर्ड्स या Yeah, कभी उनका अफेक्शन या कभी क्या है, कभी डांट भी yeah, ऐसी होती थी कि हाँ, मतलब आपकी लर्निंग ही हो रही है एक तरीके की, वो एक टाइम के बाद correct, जाके समझ correct. में आता है। बट वो जो बिल्कुल. ट्रस्ट बिल्डिंग हमारी हुई ना, तो उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे तो टीचर ही बनना होगा जाके। So that answers my question, which I was going to ask you, that why did you become a teacher? तो ओके। तुमने उसको आंसर ही कर दिया कि तुम्हें इतना अच्छा लगता था कि तुमने कहा कि मुझे टीचर ही बनना है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड? यस मैम, इसके अंदर जैसे एक तो मेरे को ये था कि मेरे टीचर्स मेरे ही रोल मॉडल रहे, तो वट एवर दे यूज टू डू, वट एवर दे यूज टू एक्सप्लेन अस, और मुझे ऑब्जर्वेंट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आई हैव बीन, मतलब जितना मैं ऑब्जर्व करके सीखती थी ना उनसे, उतना मेरे को शायद वैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी तो मेरे को उतना नहीं पता लगता। तो वो एज अ रोल मॉडल मेरे लिए रहे, एंड मेरे अंदर ये चीज आती थी कि जैसे मेरे टीचर्स मेरे लिए कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर द अदर्स ऑल्सो, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर द यंगर जनरेशन। जब मैंने अपना बीएड किया तो तब मेरे अंदर वो चीज की फीलिंग आ चुकी थी कि आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग फॉर द यंगर वंस, फॉर द चिल्ड्रंस, जो हमारे आगे जाके मतलब फ्यूचर सिटीजन्स हैं, जो हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ वो करने वाले हैं। द थर्ड थिंग आई वुड करेक्ट, लाइक टू करेक्ट. ऐड कि मुझे सोसाइटी को एक अच्छा गिव बैक देगा, जैसे आपने अभी बताया कि आई स्टार्टेड विद माई पॉडकास्ट शो, तो ये भी एक चीज का मतलब उसका भी मोटिव एक यही था, दैट आई वांट टू गिव समथिंग पॉजिटिव इन द सोसाइटी। मतलब मैं आई हैव बीन अ काइंड ऑफ अ सेल्फलेस गिविंग लेडी एंड अ चाइल्ड ऑल्सो, मतलब मेरे अंदर का जो बच्चा है और जो अभी हूँ, तो इट हैज बीन लाइक अ सेल्फलेस हेल्प, मतलब इन रिटर्न मुझे कुछ मिले नहीं मिले, आई नेवर केयर फॉर दैट, बट यस मुझे देना है, करेक्ट. मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो एक तरीके का मेरा सोल पर्पस लगता है मुझे। So these were बिल्कुल, the few बिल्कुल, things which एब्सोल्युटली. has inspired me for teaching line. To become a teacher, because teachers are always giving. हर चीज में नॉलेज गिव कर रही है, अफेक्शन गिव कर रही है, लव गिव कर रही है. कई बार प्रीति ये देखा है, तुम्हारे इससे टेक होम मैसेज बड़ा अच्छा है, तो जो तुमने अभी एक्सप्लेन किया कि तुमको जो टीचर से मिला वो तुमको इतना इंस्पायर किया दैट यू सेड यू वांट टू बिकम अ टीचर, विच वाज सो नाइस. बिकॉज हम इंस्पायर होके किसी को रोल मॉडल बना के ही कुछ बनते हैं, दैट इज फैक्ट. So, मेरा message to all the teachers out there as a consultant psychologist is कि बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं अपने बच्चों के साथ. तो आई वुड लाइक टू जस्ट एड अ फ्यू थिंग्स कि आई एम श्योर यू आर ऑल सच बिग गिवर्स लाइक प्रीति, रोल मॉडल्स हो आप जो आज अपने बच्चों के लिए करोगे वही बच्चे आपको देख के अपने स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, क्योंकि यू आर लिविंग अ बिग फुटप्रिंट ऑन देयर माइंड्स. सो जस्ट ये आप सोच के चलिए कि आपका एक एक शब्द, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड एक बच्चे की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. So you Absolutely. have to be very careful. You have big responsibility on your shoulders, right, Preeti? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। दिस थिंग यू हैव मेड सो मच क्लियर कि आप मतलब एक वर्ड्स जो हैं टीचर्स के, वो जिंदगी बनाते भी हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो उसमें ये बिगाड़ भी है सकता कि मतलब अपने जो है लैंग्वेज, जो टीचर्स बोलते हैं, वो लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए या उनकी इंस्ट्रक्शंस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बच्चा ना है. कंफ्यूज Absolutely. होके गलत जगह पे इन्फ्लुएंस ना हो जाए बस। बिल्कुल, बिल्कुल. और इतने टीचर्स के अंदर आई फील उनकी पर्सनालिटी में अफेक्शन होना चाहिए, कि बॉन्डिंग होनी चाहिए, दैट अ चाइल्ड कैन कम टू देम फ्रीली एंड आस्क देयर क्वेश्चंस. बच्चे पूछते ही नहीं है. व्हेन आई गो फॉर सम वर्कशॉप्स, वेरी सैड, दो टीचर्स बैठती हैं टू दे सिट इन द वर्कशॉप्स व्हिच आई टेक विद द स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स, और बच्चे पूछते ही नहीं है कुछ, डर के मारे. सो ये डर नहीं होना चाहिए. फियर इज अ नेगेटिव इमोशन. Like I said, teachers are parents हैं स्कूल में. So a child should be so, and he should feel so comfortable that you're there with him, कि उसको एक के बदले दो सवाल पूछने चाहिए. That वो वाली फीलिंग लाइए और बच्चों का, ताकि कैरेक्टर, पर्सनालिटी सब आप ही बना सकती हैं. या प्रीति, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? वन थिंग आई विल ऐड मैम, जैसे ये पॉडकास्ट शो आपका टीचर्स क्या, शायद आगे बच्चे भी देखेंगे इस चीज को,
So for the students, हम्म, for the children, my humble suggestion is never ever hesitate while asking the question. Why so? करेक्ट, Because learning is a long life process. आप स्कूल बिल्कुल, से लर्न करके निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद आप करियर चूज करोगे, एंड हम लोग आज भी कुछ ना कुछ लर्न कर ही रहे हैं, कोई स्किल है या कुछ है, तो वी आर लर्निंग ओनली। एब्सोल्युटली। जितना आप आप तुमने लोग मुझे ही देखा, पूछेंगे तुमने मुझे ही देखा, मैंने पॉडकास्ट कैसे लर्न किया तुम्हारे साथ आज। वी आर ऑल लर्निंग, या राइट, तो जितना बच्चे पूछेंगे उतना ही वो लर्न करेंगे, या उतना ही वो अपनी स्किल्स को ब्रश करेक्ट, अप कर पाएंगे। लेकिन जहाँ आप एब्सोल्युटली, हेजिटेशन में ककून में रह गए, तो फिर आप वहीं रह जाओगे, फिर आप आगे बढ़ नहीं वही पाओगे। रही, तो इट्स हम्बल बिल्कुल सजेशन फॉर द बिल्कुल। चिल्ड्रन। या मैं तो जो बच्चा पूछता है उसको क्लैप करवाती हूँ क्लास में, बिकॉज इफ यू आस्क आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड जो बोलने वाला है उसको भी अच्छा लगता है कि बच्चों को कुछ समझ आया। अदरवाइज एक मोनोटनी, आप ही बोल रहे हो और बच्चे कुछ पूछ नहीं रहे, सो लेट इट बी एन इंटरैक्टिव सेशन देना चाहिए टीचर्स को, ताकि बच्चों को क्वेश्चंस बीच में या एंड में पूछ ले अपना। सो वो देखना है। अच्छा प्रीति, मैं ये देख कह तो रहे हैं हम लोग सब कुछ बातें, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें कहा कि टीचर्स के ऊपर बर्डन बहुत होता है प्रीति, जी बिकॉज आई सी दैम अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock, क्योंकि स्कूल शुरू हो जाते हैं, घर से जाना है, और एक घर चलाना, यू नो आजकल तो खैर जेंडर इक्वालिटी है एंड वी आर टेलिंग एवरीवन टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर, लेकिन तब भी एक मदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों की भी घर की भी। शी फील्स रिस्पॉन्सिबल, उस घर से निकलती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, फिर शी कम्स टू स्कूल एंड वहां पे उन बच्चों को देखती है, उसके साथ साथ उसकी अपनी हेल्थ है, अपनी वेलबींग है, फिजिकल एंड मेंटल। सो द मेंटल वेलबींग ऑफ अ टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, क्योंकि अगर वो हैप्पी है, अगर वो खुश है, तभी वो खुश बच्चों को बोलने देगी या पूछने देगी या बिल्कुल। बच्चों के साथ बॉन्ड करेगी। इफ शी इज इन स्ट्रेस, इफ शी इज इरिटेटेड, इफ शी इज टायर्ड, इफ शी इज एंग्री, घर से ही झगड़ा करके आया या घर में सपोर्ट नहीं है या उसका एंगर इश्यूज हैं, तो इट इफेक्ट्स द चिल्ड्रन ऑल्सो। सो आई टेल देम कि आप पहले अपना ख्याल रखो, फर्स्ट बी अ हैप्पी टीचर टू हैव हैप्पी चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, पहले अपने को देखो, खुश रखो, शांत रखो, अपनी नींद पूरी करो, खाना खाओ घर पे, अपने अपनी मेंटल वेलबींग के साथ स्कूल में आओ, सो दैट यू गिव मेंटल वेलनेस टू द चिल्ड्रन। इसमें आपकी क्या राय है प्रीति? वेरी वेल यू हैव सेड मैम कि अपने खुद का ध्यान रखना के लिए, और खुद का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? वी कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। इफ आप अगर मेरे भी बात करोगे तो मैं एवरी मॉर्निंग सुबह जो है 15 to 20 मिनट्स आई डू द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आई डू योगा, मेडिटेशन। एक दिन योगा, एक दिन डीप ब्रीदिंग, मतलब ऐसे ऐसे करके 7 डेज अ वीक कुछ ना कुछ माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करिए या योगा करिए, तो दैट विल काम डाउन योर एनर्जीज। मतलब आपको जैसे किसी को भी एंजाइटी होती है या टेंशन होता है या एंगर होता है, तो उसमें जो है वो चीज़ हमारी काम डाउन हो जाती है। सेकेंड थिंग इज, जब हम एज अ टीचर्स क्लास में जाते हैं, अभी तो एट प्रेजेंट आई एम नॉट वर्किंग इन इन स्कूल, बट जब मैं स्कूल में करा रही थी, तो बच्चे जैसे एकदम सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो स्टार्टिंग में व्हाट यू कैन डू इज कि कुछ उनको साथ भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। 2 मिनट्स 3 मिनट्स आप मतलब मेडिटेशन की प्रैक्टिस हो गई, या आपकी मेमोरी टेक्निक्स हो गई। मेमोरी टेक्निक्स कैसे होती हैं? आई डू वन एक्सरसाइज एंड इफ मैम यू वांट टू डू, यू कैन आल्सो accompany me for this। इसके अंदर वी कैन टेक दिस, वन थंब हेयर एंड लिटिल फिंगर, राइट, एंड देन स्विच हम्म, इट, अच्छा, स्विच, स्विच, हाँ ठीक है। स्विच। सो दिस इज करेक्ट, द मिड ब्रेन ब्रेन एक्सरसाइज। तो उससे ब्रेन क्या होता है कि एक्सरसाइज हाँ, उससे क्या होता है कि बच्चा भी कंसंट्रेशन पावर उसकी बढ़ेगी, प्लस वो जितना बढ़ेगी, भी मतलब गुस्सा में है या कुछ ऐसा, क्लास में हाँ नॉइजी क्लास है, वो आपकी सेटल डाउन हो हाँ, जाएगी। एंड यू एज अ फोकस टीचर कर, विल बी प्रिपेयर टू प्रेजेंट योर लेसन प्लान। मतलब आप अपना करेक्ट, अटेंशन, अपना वो बच्चे का जो आप चाहते हो उनसे, वो आप बिना डांट के, बिना हाँ, गुस्से के आप ऐसे ही कर जाओगे। या तो या दिस इज द बिल्कुल, काइंड ऑफ एब्सोल्युटली, टेक्निक आई वुड सजेस्ट। वंडरफुल वंडरफुल। कहने का मतलब है, प्रीति ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। शी सेड दैट व्हेन डियर टीचर्स, व्हेन यू एंटर द क्लास, यू नो थोड़ा मेडिटेट करके, मन शांत करके एंटर करिए, क्योंकि अगर आप क्लास में जाएंगी, लॉट मेनी टीचर्स होती हैं, स्क्रीम कहती हैं, आई हैव सीन देम,
चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, लाउडली। सो बच्चा भी लाउडली बोलेगा, भी वो कैच कर रहा है आपको। सो जितना आप शांत होके जाएंगी, थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा कामनेस की एक्सरसाइज सिखाएंगी एंटर करते ही क्लास में। डीप ब्रीथ कर लो उनको थोड़ी देर, या काउंट कर लो कुछ। जितना आप काम होंगी उतना ही बच्चा काम होगा। डीप ब्रीदिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्चुअली डीप ब्रीदिंग से पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पथेटिक इज शांत करने का, सिंपथेटिक इज स्ट्रेस, एंजाइटी, एड्रेनलिन है तो हम लोग हमेशा हाइपर है। उसको शांत करने के लिए डीप ब्रीदिंग हमारी वेगस नर्व के साथ काम करती है, हमें शांत करती है। बस 4 गिनते गिनते आप सांस अंदर लो, टेक इट, ब्रीद इन, काउंट 4, और 8 गिनते गिनते छोड़ो। योर एक्सलेशन शुड बी लॉन्गर देन योर इनलेशन। अंदर लो, 2 गिनते गिनते रोको, और 8 गिनते गिनते छोड़ो। 4, 2 स्टॉप, एंड 8 आउट। फिर 2 मिनट, 2 गिनते गिनते रोको, फिर 4 इन। डीप ब्रीदिंग हैज अ वेरी बिग इफेक्ट ऑन द माइंड। वो काम करता है क्योंकि आपका फोकस ब्रीदिंग पे आ गया, तो इधर उधर के थॉट सारे चले गए। सो व्हेन यू स्टार्ट द क्लास यू शुड बी वेरी काम, एंड ड्यूरिंग द क्लास यू शुड बी वेरी काम ऑल्सो। आई ऑल्सो टेल द टीचर्स, जब वो मुझे सराउंड करती हैं एंड दे हैव देयर इश्यूज, कि अगर उनको इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो काउंसलिंग लेने से, हेल्प लेने से अपने लिए झिझके ना। बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, वी ऑल नीड हेल्प। एंड द मोर हेल्प, द मोर हेल्प वी गेट, बिकॉज कोई स्टिग्मा नहीं है इसमें। मेंटल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज एज इम्पोर्टेंट, इट इज देन अ गुड मेंटल हेल्थ इज गुड फिजिकल हेल्थ, एंड वाइसी वर्सा। और फिजिकल हेल्थ की दवाइयां हैं, खांसी जुकाम बुखार की हैं, तो मेंटल हेल्थ की भी हमारी दवाइयां हैं। एंग्जाइटी वगैरह की कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, विजिट अ प्रोफेशनल, टेक काउंसलिंग, अपना मन शांत रखिए। क्योंकि आपको 2 एरियाज ऑफ द वर्ल्ड देखने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपना घर भी देखना है एज अ मदर, and you are the foundation of your house and of your family. Your children will do exactly what you are doing and talking and saying and behaving. Then you have to uh, look after the school children also. They will also look after, do whatever you're saying, the way you're behaving. So you have such a big responsibility. तो अपने आई को, अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखिए। खाना बनाइए, पहले खुद खाइए। दिल से, मैम सो सेल्फिश, पहले बच्चों को खिलाएंगे। नो, ये हमारे टाइम पे होता था। हमें प्रीति कहा जाता था, यू आर अ डॉक्टर, यू गोइंग टू बिकम यू आर अ डॉक्टर, पेशेंट्स की सेवा, पेशेंट्स हैं तो सब कुछ है, एंड जस्ट गिव एवरीथिंग, गिव, दैट इज ओके, गिव तो करो। लेकिन कुछ गिव करने के लिए हो तो, फिजिकली मैं फिट हूँ, मेंटली मैं ठीक हूँ, तभी तो मैं कुछ गिव करूंगी। If I'm a wreck physically and I'm mentally not healthy, how will I be able to help my patients? So अपने आई को हमेशा देखो, मेंटली हेल्दी रहो, फिजिकली, तब जाके आप औरों को देख पाओगे। प्रीति, कंटिन्यूइंग विद द टीचर्स, दिस थिंग, ये वर्क लाइफ बैलेंस तो है ही है, जो मैंने बोला सब कुछ है। तुमने इसमें कुछ टिप्स भी दिए कि अपने को रिलैक्स रखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, और कुछ बताना चाहोगी टीचर्स को कि वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मेंटेन करो? यस मैम, इसके अंदर वी कैन हैव कि आपकी जो भी हॉबीज हैं, मतलब यू कैन बी गुड एट रीडिंग, आपको रीडिंग अच्छा लग सकता है, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा लग सकता है, आपको डांस अच्छा लग या सकता है। अकेले में जाओ, डांस या करो, एंजॉय करो। मीन्स जस्ट इट्स करेक्ट काइंड ऑफ जो हैप्पी आपके हॉर्मोन्स होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। सो यू कैन डू करेक्ट एवरीथिंग। आई लव टू लिसन टू हनुमान चालीसा। आई लव टू लिसन टू द म्यूजिक, जो 90s के म्यूजिक आते थे आपके किशोर कुमार जी के, वंडरफुल देवानंद जी के। मुझे वो चीज जो है हाँ हाँ रिलैक्स देती। ऐसे बहुत सी, वंडरफुल इवन आई डू आर्ट एंड क्राफ्ट एंड आई हैव अ मतलब 9 years old डॉटर ऑल्सो। तो उसके साथ बैठ के मैं कभी कभार आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, तो इट रिलीज माई स्ट्रेस ऑल्सो। वंडरफुल तो इस तरह की वंडरफुल छोटी छोटी वंडरफुल। तो डी एक्टिविटीज है स्ट्रेस, जो टीचर्स कर सकते हैं। आपको डी स्ट्रेस करेगी। आपको अपना मी टाइम निकालो, हॉबीज देखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, बी विद, हैव अ हैप्पी सराउंडिंग, सी हैप्पी मूवीज, सी हैप्पी फ्रेंड्स, ऑल दैट हेल्प्स। राइट। इमोशनल वेलनेस पे आते हैं प्रीति। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये सारी बात हम उसी के बारे में कर रहे हैं। होलिस्टिक हेल्थ इज गुड, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल हेल्थ। WHO कहता है ये होलिस्टिक हेल्थ है। इमोशनल हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा EQ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी जनरेशन, आज की जनरेशन इतनी लकी है दैट वी आर टॉकिंग ऑफ दिस। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, नोबडी टोल्ड अस अबाउट Nobody दीज does that. थिंग्स। Yes. So yeah, nobody told us about how to be happy or how to be calm. गुस्सा करना was so natural, गुस्से से ही काम होता था पहले,
चाटे भी पड़ते थे True. बच्चों को। True. तो या so now things have changed and it's more of awareness and it's really and all this is research based कि ये रिसर्च हेल्प बताती है कि इमोशनल वेलनेस बहुत जरूरी है। सो इमोशनल वेलनेस के बारे में तो यही है ना प्रीति कि अगर मैं अपने इमोशंस को देख पाऊं, व्हाट इज इमोशनल वेलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इफ आई एम एबल टू मैनेज माई इमोशंस, मुझे पता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि गुस्सा मुझे उसकी वजह से आ रहा है, मुझे ये भी पता है कि मैं उसको बदल नहीं सकती, एक्सेप्ट ही करना है, अपने मन को शांत करना है। तो जब मुझे ये सारी चीजें पता है तो मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर लूं। आई एम हाई ऑन EQ, सो आई एम अ वेरी काम पर्सन। लेकिन साथ साथ इमोशनल वेलनेस का ये भी होता है कि मैं दूसरे के इमोशंस को भी समझूं कि वो जो मेरे पे चिल्ला रहा है, या कि जैसे टीचर्स के लिए वो मेरे से पूछते हैं कि मैम हम कैसे पहचाने कि बच्चों को प्रॉब्लम है, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को, इतने सारे बच्चे होते हैं। यू हैव टू बी वेरी हाई ऑन EQ एज टीचर्स। आप देखो कि वो जो बच्चा चुप बैठा है, वो जो बच्चा क्वाइट बैठा है, या बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, या बच्चा खिड़की के बाहर देख रहा है, या सो रहा है क्लास में, डोंट स्कोल्ड हिम, डोंट डांटो हिम कि ये क्यों कर रहे हो, क्यों, देयर इज अ रीजन। क्या घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई अब्यूज है, कोई फाइटिंग है, कोई उसको स्लीप की टाइम नहीं मिल रहा। सो टीचर्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपनी मैनेजमेंट से बोल के वर्कशॉप्स करवाइए, ताकि आपको उसके बारे में बताएं कि बच्चों की प्रॉब्लम्स को कैसे आप समझो, तभी उनको आप केटर कर सकते हो। अदरवाइज उनको आप डांट के या नंबर कम दे के, और नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीजें टीचर्स को पता होनी चाहिए। फॉर दिस दे नीड वर्कशॉप्स एंड टॉक्स। हमारा परी फाउंडेशन NGO है जो इसी बारे में काम करता है प्रीति। हम Yeah. लोग वर्कशॉप स्कूल में जाके we spread awareness about good mental health in children and in teachers, and how we Right. Absolutely. like to add anything to that? यस मैम, फॉर श्योर। इसके अंदर आपने जैसे बात करी कि खुद को सेल्फ अवेयरनेस होनी जरूरी है, तो इसके अंदर हाँ, ये है कि अगर हमारे अंदर एंजाइटी है या एंगर है, तो करेक्ट फर्स्ट थिंग है कि आपको वो चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज है। आफ्टर करेक्ट दैट ओनली करेक्ट। यू विल बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन। मतलब उस प्रॉब्लम का आप वंडरफुल। सोल्यूशन तभी निकाल पाएंगे जब आपको उसका एक्सेप्टेंस होगा, उसकी अवेयरनेस होगी। जब आप खुद को करेक्ट, अवेयरनेस करके खुद को इमोशनली फुल कर लेंगे, देन ओनली यू कैन pour that cup from that cup to your child or to the students. वेरी गुड वेरी गुड, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ यू। दो तीन बातें और भी याद रखनी चाहिए हमें, कि हमें तो ये बहुत, मुझे मेरी तो लाइफ चेंजिंग बातें लगती हैं ये, कि थिंग्स इन माय कंट्रोल एंड नॉट इन माय कंट्रोल। Right. हम लोग हमेशा दूसरों की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट खराब है, मैनेजमेंट खराब है, ये बच्चा ठीक नहीं है, ये क्लास की व्यवस्था ठीक, वी आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड वी डू इट द होल डे लॉन्ग। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी। उन पे ठीक है बात करनी है, उनके कोशिश करनी है कि वो बेटर हो, बट फोकस करना है अपने पे। माई थॉट्स, माई इमोशंस, माई फीलिंग, माई बिहेवियर। मैं अपने को 24 टोटली बदल के हैप्पी कर सकती हूँ, लेकिन मैं दूसरे को हैप्पी करूं ये मेरे हाथ में नहीं। वो So, उसकी अपनी साइकोलॉजी है, उसका अपनी वो चल रही है मशीनरी। सो ही हैज टू वर्क और शी हैज टू वर्क। सो एक्सेप्ट अदर्स, गुस्से मत हो। अगर एंड दूसरी थिंग मुझे प्रीति जो अच्छी लगती है, वो ये लगता है कि अगर दूसरा चिल्ला रहा है या दूसरा गुस्से में है, तो वो आपके बारे में नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है। true. उसको किसी ने डांटा होगा, वो गुस्से में आया होगा बाहर से। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट हिम। तो अपने को हमेशा न्यारा अलग रखो, पीसफुल रखो, एंड बी कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ, विद स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि कोई है नहीं है, देयर इज समथिंग हायर विच इज ऑलवेज देयर विद यू। यही बच्चों को भी सिखाना है। एंड whatever you learn or whatever you know, you have to teach that to your children. Am I right, Preeti? Do you want to I say want to something? add one thing, yeah. I want to add one Yeah. thing, जैसे आपने बोला ना, किसी और का हम गुस्से को जो है उसके पीछे का इंटेंशन को समझना चाहिए। तो दिस रिमाइंड्स मी हाँ ऑफ वन कोट, दैट एनर्जी गोज वेयर द इंटेंशन फ्लोज। हाँ, जहाँ attention and intention.
जहाँ करेक्ट। इंटेंशन होगा, इंटेंशन अगर सामने वाले का लग रहा है कि हाँ उसको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके हम्म। पीछे रीजन क्या है? इज ही और शी हम्म। हिमसेल्फ डिस्टर्ब? क्या उसका, जैसे आपने अभी इतना अच्छे से समझाया कि कुछ इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चा ही या समझा क्लास में कि कहीं डांट खा के आया है, या घर से कोई हाँ हाँ प्रॉब्लम है, तो द हाँ। टीचर नीड टू गो टू दैट रूट कॉज, उस रूट कॉज या का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, बजाय कि बच्चे को या ऊपर से सिर्फ डांट देना और डांट समझाना। दिया। दैट इज नॉट इवन गोइंग करेक्ट। टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एंड दिस नो आई दैट विल लाइक दैट। या आई करेक्ट। हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस, जब मैं जैसे बच्चों को अभी पढ़ाती भी हूँ ना, तो एक दो बच्चे ऐसे हैं कि कभी कभार उनको आके क्लास में इतनी नींद आएगी, इतनी नींद आती है, एंड देन ऐसा जब उनके पेरेंट्स से बात करो कि मैम ये तो सुबह जल्दी उठ जाता है, रात को टाइम से सो या जाता है, फिर भी नींद नहीं आती है। करेक्ट। तो हाँ। मुझे उनकी बातों से क्या समझ में आया कि पेरेंट्स ही खुद इतने एग्रेसिवली होकर सुलाने के उसमें होते हैं, जल्दी सो जाओ। हम्म। मीन्स एक नाइट टाइम ऐसा होता है जहाँ आप कोई स्टोरी बच्चों को सुना दीजिए, या कोई करेक्ट। हनुमान चालीसा ही सुना दीजिए, या कुछ ऐसा या रिलैक्सिंग जहाँ उसको मतलब एक या पॉजिटिव वो मिले, कि उसके ड्रीम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। रहे और एक अच्छी स्लीप आए, साउंड स्लीप आए। इफ द बच्चा इज पूरा टाइम एब्सोल्युटली। डिस्ट्रैक्टेड लाइक दिस, तो फिर वो या दिन में भी जो है क्लास में फिर या तो सोएगा, या वो टेंट्रम्स दिखाएगा, या वो अपने शरारतें दिखाएगा, जो एक्चुअली में शरारतें होती नहीं है, वो उनके एक्शंस होते हैं कि घर हम्म। पे नहीं सुनी गई है तो यहाँ तो कोई कुछ कहेगा, करेक्ट करेक्ट इस करेक्ट। टाइप से। So, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। सो नाइस ऑफ यू टू ऐड स्लीप हाइजीन टू इट, बिकॉज अगर रात को सोया ही नहीं है तो दिन में काम कर ही नहीं, फोकस रहेगा ही नहीं, उसका टेंशन रहेगी नहीं। एग्जाम टाइम पे रात को पढ़ते हैं, दिन में सब भूल जाते हैं। सो स्लीप इज वेरी एसेंशियल। 7 से 8 घंटे की रात की स्लीप, रात की स्लीप सबके लिए, क्योंकि मेलाटोनिन निकलता है रात को, जो हमारे वियर एंड टीयर को खत्म करता है। साथ साथ टीचर्स को ये भी देखना है। अब रात को एक और बात है कि बॉडी तो सो जाती है, माइंड नहीं सोता। तो जैसे प्रीति ने कहा, काम करो, उसको प्रेयर लो, कुछ रीड समथिंग गुड, ताकि आपका माइंड भी सोए और आपकी बॉडी भी सोए रात को। दूसरी चीज, मैं टीचर्स को, आई थिंक जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट बिफोर द मीटिंग विल वाइंड अप, सो आई जस्ट वांट टू टेल टीचर्स टू बी वेरी केयरफुल ऑफ पीयर प्रेशर, कि बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर तो नहीं है, कि बुलिंग तो नहीं हो रही है बच्चों की। तो बच्चा अगर चुप है, उदास है, दीज आर ऑल थिंग्स you need to talk to the children so that they can come and talk to you if they are facing it. कहीं ड्रग्स अब्यूज में तो नहीं जा रहे हैं, बुलिंग पीयर प्रेशर से। सो यू नो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। टीनेजर्स की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, दे हैव क्वेरीज, सेक्स एजुकेशन के बारे में वो जानना चाहते हैं, बाउंड्रीज कितनी है, कितनी बात करनी है। आजकल ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, ये एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। So teachers need to tell them, of course, you have to be friendly with everyone. This is the age to talk to everyone. लेकिन boxes में मत डालो किसी को कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। This is age of learning, of making your career. बाद में when you grow up, things will change. So this sort of open communication with teachers, with students and teachers is very important. मैं देखती हूँ कि ये भी कोर्स के साथ, करिकुलम के साथ, ये भी हर टीचर को बात करनी चाहिए। कुछ मिनट भी निकाल के आप बच्चों को गुड विजडम दोगे तो दे विल टेक होम दैट मैसेज। आप, वो बच्चा किसी की बात सुने ना सुने, टीचर की बात जरूर सुनता है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चे आके टीचर्स ने क्या कहा उस चीज को इम्बाइब करके ज्यादा आते हैं, ना कि पेरेंट्स क्या कह रहे हैं। राइट प्रीति? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वाई? बिकॉज बच्चे जो है स्कूल में एक तो 8 आवर्स तक रहते हैं, और घर पे पेरेंट्स हाँ। जो होते हैं ऑल द टाइम दे आर देयर ऑन चिल्ड्रन, या और वहां पे उनकी या जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह लीजिए, वो जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बात करी, घर पे तो बच्चे जो है पेरेंट्स पेरेंट्स ही होने चाहिए, तो वो अपनी करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतने ज्यादा वो करते हैं कि कभी कभार एंगर, कभी कभार फ्रस्ट्रेशन होती है, कि बच्चे को लगता है कि कोई मेरी सुन ले। एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट द टीचर्स कि उसके लिए एम्पैथेटिक लिसनिंग ईयर्स होना बहुत जरूरी है, रादर देन बिल्कुल। स्पीकिंग कि आप आके क्लास में इंस्ट्रक्शंस ही दे रहे हैं। एटलीस्ट एक बार जो है बच्चे से, अगर आपको कहीं नोटिस भी हो रहा है कोई बच्चा, चाहे वो हम्म। टॉडलर हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो 10th का हो, हम्म। 12th का हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास, हम्म। उसके बिहेवियर हम्म। में ही आपको चेंज लग जाएगा। इफ यू हैव दैट मच नॉलेज अबाउट दैट चाइल्ड, या उसके फैमिली बैकग्राउंड का आपको पता है, तो आपके बिहेवियर के चेंजेस से ही आप उसको एकदम जज कर पाओगे, यस। देख पाओगे। एंड जस्ट एब्सोल्युटली आस्क देम, आर एब्सोल्युटली। यू ओके, डू यू नीड एनी हेल्प? एंड देन यस। यू कैन सी कि वो जो होगा वो एकदम ऐसा एक्सप्रेस हाँ करेगा, देन यू कैन फाइंड हाँ। आउट सॉल्यूशंस फॉर दैट। Yeah, yes, teachers, बिल्कुल। Teachers don't have to be friends. Even parents don't have to be friends.
I don't suggest कि friends बनो, but you can be friendly teachers, you Right. can be friendly parent, Yes. attitude friendly रखो, but friends तो बच्चों के पास बहुत होते हैं. जैसे प्रीति ने बोला, empathetic रहो, सुनो ज्यादा, बोलने का मौका दो, वो बताएगा. और अगर आपको लगता है, and if you feel that the child is facing any sort of abuse at home or in anywhere else, you should be aware and you should take care of that, and you should talk to children about it. Safety measures बहुत important है. With all the things happening in the world today, you can see कितना turmoil है world में. Real world और real world दो different चीजें हैं. तो बच्चे screen addictions में इतने हैं, इसके बारे में बात करनी है कि ये virtual है, ये real नहीं है. real life से फर्क होती है. All this thing has to be told to the children by the teachers. So teachers need to empower themselves first with knowledge, with wisdom, with skills, and then give it to the children. Teachers need to be de-stressed, happy. Happy teachers have happy children. And a happy children is happy homes. Happy homes are happy families, happy society, and a happy world. So each one of us needs to work on themselves, right, Preeti? Right, ma'am, right. Absolutely. You have given us such a sweet message in पूरे talk show का आपने एक अच्छा message दे दिया. Happy children, Right. happy teachers, happy parents, happy society. Yeah. It's all in our hands. Each one has to work on themselves to produce a happy me first. So, Preeti, when does this come? It आएगा उसमें लिख के when this thing goes off? It happened. Only 7 minutes left. Pardon? 7 minutes left. Okay, right. So let's proceed. We have a good more time now. Preeti, one thing I would like to ask you something is that when teachers, like a lot of students come and tell me कि मैम teachers से डर लगता है. They go for tuitions. They go to other places to solve their problems rather than getting their problems solved in class by the teachers. Now teachers also have their issues. वो कहती है मैम पीरियड इतना है, फिर टाइम मैनेजमेंट का वो सब होता है. तो ये सारा जो खेल है, टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ बिग इशू. वी ऑल ऑफ अस नीड टू अडियर टू टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, तो स्ट्रेस कम है, लेकिन what is the role of tuitions in a student's life, and what is the role of a teacher in that? मैम ट्यूशन में बच्चे इसलिए जाते हैं, एक तो अगर उनको एकेडमिक्स में हेल्प चाहिए होती है तो Yeah. एकेडमिक इफ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग तो, एंड प्लस पेरेंट्स के पास अगर टाइम नहीं हो पाता कि अगर आप घर में ही जो है बच्चों को 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाने के लिए उसमें की कनेक्टिविटी के साथ बैठ के उनको पढ़ा Yeah. सकते, तो या आता ही नहीं है उनको. फॉर द, और एक चीज है कि अगर जैसा मैं 10th 11th 12th की बात करूँ तो उसमें तो हर पेरेंट को हर सब्जेक्ट नहीं आ पाता. जैसे मैथ्स है, साइंस है, अकाउंट्स, आपका इकोनॉमिक्स, ये तो हर Correct. पेरेंट्स की भी स्ट्रीम अलग है और बच्चों को अलग ही Right. स्ट्रीम में अपना करियर चूज करना. तो देन दे Yeah. ऑप्ट फॉर द कोचिंग. वो फिर उस कोचिंग के Yeah. लिए, कोचिंग क्लासेस के लिए, देयर ऑल्सो द टीचर्स हैव टू सी द सेम थिंग व्हाट द स्कूल टीचर्स आर डूइंग. एक तो वहाँ का Right. करिकुलम दोनों का एक जैसा सेम चलता रहे, सो दैट बच्चा Very good. ना. और दूसरा, Yeah. अगर आपके पास बच्चा पेरेंट जो है एक ट्रस्ट के साथ भेज रहा है, उसका सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान रखिए, प्लस उसका बिहेवियरल इश्यूज अगर आपको दिख रहे हैं तो उस पर भी पेरेंट्स Yeah. को उसी टाइम पे वो करिए. देखो, आई डू रन माई कोचिंग सेंटर ऑल्सो, तो यहाँ मेरे पास जैसे बच्चे आते हैं तो मतलब वीकली वंस मेरा सब पेरेंट्स के साथ ये डिस्कशन होता ही होता है. Connection. जो Right. Right. पेरेंट बच्चों को भी कभी कभी पता होता है, कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेरे को पेरेंट्स को ही बतानी होती है, सो दैट दे Right. कैन आल्सो टेक केयर एट होम या स्कूल से अगर कोई हेल्प चाहिए तो आस्क फॉर Yeah. हेल्प. जैसे मतलब Correct. यही हो गया आपका टीचर और मैनेजमेंट और पेरेंट्स, ये जब तक तीनों इकट्ठे ट्रायंगल में वो नहीं होंगे तब Yes. तक आप बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए Yes. can't work on. So this I thing I have totally agree. deeply experienced, deeply. Very, very important. So coachings, tuitions are important. As far as self study के बाद अगर बच्चे को कुछ समझ ना आए तो पहले तो टीचर से ही क्लियर करने की कोशिश करे क्लास में. सो टीचर्स का ये रोल है कि अगर टीचर्स का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे शुड रियलाइज दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. Every child has a different intelligence, different emotional, different family bringing. दो फिंगरप्रिंट्स एक नहीं होते हैं, ट्विंस के भी. तो बंदे दो लोग एक नहीं हो सकते हैं. सो तो वो टीचर्स का इतना बड़ा रोल है कि दे हैव टू गिव डिफरेंट
behaviors and different listening and different attitudes with different children. So वो सारा आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा, अपना घर भी देखना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी बच्चों को इजी भी मैम, देखना ये है। सब करना जो है ना बहुत इजी हो जाता है अगर चीजों को प्रायोरिटाइज करके रखा जाए। अब टीचर्स का व्हाट आई हैव हम्म, सीन माय पीयर्स आल्सो, कि टीचर्स का ये रहता है कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, सबको देखना, सबको मैनेज करना। एट द सेम टाइम हर बच्चे का जो है ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक, ये 3 तरीके होते हैं कोई भी चीज को सीखने के, करेक्ट, लर्निंग स्टाइल जिसे एब्सोल्युटली, हम कहते हैं। तो टीचर नीड इंटेलिजेंसेस टू फर्क हो। आइडेंटिफाई कि मेरा बच्चा जो है इंस्ट्रक्शन सुन के खाली करेगा, या वो वीडियोस करेक्ट, को दिखाऊं तो करेगा, या उसको मैं या टास्क दे दूं, लर्न करके खुद आके अपनी गलतियों से सीखेगा। दैट इज काइनेस्थेटिक। इस टाइप या के बच्चों को भी वेरी, हम जो है अलग अलग सेग्रीगेट करके, एंड द पीपल चिल्ड्रन दोज हु आर बिलो एवरेज, आई वोंट से वीक, आई वोंट से कि उनको भी क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है, उसमें या टीचर्स क्या कर सकते हैं, जो आपके स्कूल में 0 पीरियड होता है या आपका या एंडिंग का टाइम होता है, हेल्प उसमें कर, रेमेडियल क्लासेस ले लो। उसमें बच्चों को रेमेडियल, एक एक्स्ट्रा बट एफर्ट दे या दो, एक्स्ट्रा उनको अलग से समझा दीजिए, आपका भी प्रेशर कम करेक्ट, होगा और बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। या या बट स्टडीज शुड बी इंक्लूसिव। ये अलग अलग बैच और ये सब नहीं होने चाहिए मार्क्स के राइट, प्रति, ये मेरा मानना है। राइट, इट इफेक्ट द सेल्फ एस्टीम। सेल्फ राइट, एस्टीम इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी सेल्फ एस्टीम हाई है, सेल्फ एस्टीम का मतलब मैं अपने को किस नजर से देखती हूँ। तो अगर मैं अपने को बोलूं मैं लो मार्क्स है, मैं तो हुई, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, ये इंप्रेशन हम बच्चों के दिमाग में डाल दें, तो वो लो सेल्फ एस्टीम से जब ग्रो होगा तो डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम में ही रहेगा। आगे उसमें लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज नहीं आएंगी। तो एक टीचर का रोल ये भी है, अपनी सेल्फ एस्टीम भी हाई रखनी है और बच्चों की सेल्फ एस्टीम भी हाई रखनी है। नो मैटर व्हाट द चाइल्ड इज, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज और हिज और हर मार्क्स आर। दो चीजों में मैं कहती हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स को, अपने माइंड में चाइल्ड और प्रॉब्लम इनको अलग करके रखो। चाइल्ड को हमेशा एम्पावर करो, वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलेंट, और जो प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करके उसकी हेल्प करो उसको सॉल्व करने में। दिस इज द रोल ऑफ अ टीचर एंड अ पेरेंट, सो दैट वी डोंट हैव चिल्ड्रन who are coming out to be bullies, who are coming out to be in low depression, who are coming out to be in low self esteem. We want happy, because these children tomorrow have to go out into the world and face other countries, other students, companies, corporates. तो EQ बच्चे का हाई होना बहुत जरूरी है। EQ के लिए हमें अप्रिसिएशन बच्चे को देनी है, उसको मोटिवेट करना है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको पहचानना है। अगर नहीं समझ आ रही तो उसके बारे में हेल्प लेनी है और बच्चे की हेल्प करनी है उनको सॉल्व करने में। कंपैरिजंस नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, ये तो सबको पता ही है। सो वी हैड अ वेरी नाइस टॉक, प्रीति। इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू, एंड यू वांट टू गिव सम टिप्स? फॉर द टीचर्स आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे आपने तो वैसे ही इतना कुछ इतने इसमें ब्यूटीफुली बता दिया कि टीचर्स नीड टू बी एम्पावर्ड, पहले अपने आप को एम्पावर कीजिए एंड देन सी दैट जो बच्चा आपके सामने है मुझे उसको भी एम्पावर करना है। सो फर्स्ट फिल अप योर कप इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, एंड देन करेक्ट, start pouring it to the children. So, and yes, you करेक्ट, all are a lovely teachers. So be proud to be a teacher. And वंडरफुल। thank you so much, ma'am, for inviting me on your first podcast show. It has given me, मतलब मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है कि आई एम डैम श्योर जो भी देख रहे हो उसको पक्का होगा ये चीज का।